Hi everyone. Acid, bases ଆଉ salt. Acids, bases and salt ଏଟା ହେଉଛି ତୁମର କ୍ଲାସ୍ 10th chapter 2 जोटाकि ऑलरेडी ଆମେ ବହୁତ डिस्कस କରିଛେ। ଏଟା ହେଉଛି ତୁମର ପାର୍ଟ 3 ଯୋଉଥିରେ ଆଉ ତୁମର ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ pH ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ। ଆମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମକୁ ସେଠି ଭୁଲ କହିଦେଇଥିଲି। ଯୋଉ pH ର ରେଞ୍ଜଟା ଯୋଉ ସ୍କେଲ ର ରେଞ୍ଜ ରହୁଛି 0 ରୁ 14 ଜାଣିଛେ। 7 ଥାଏ ମଝିରେ ଏଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ 7 ରୁ 14 ଆଡେ ଯାଉଛେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଗଲାବେଳେ ବେସିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବଢୁଛି। ବେସିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର increases. That means OH minus ର concentration କଣ ହଉଛି increase ହଉଛି। But ଯେତେବେଳେ 7 ରୁ ଆମେ କମି କମି ଯିବା 0 କୁ ଏଇଠୁ କମି କମି ଗଲା ବେଳକୁ acidic କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବଢେ। ମୁଁ ଉଲ୍ଟା କହିଥିଲି ଯୋଉଠିକି H ପ୍ଲସ୍ ର concentration ବଢିବ। କୋଉ ପଟରୁ ସେତେବେଳେ 7 ରୁ ଆମେ 8 କୁ ଯିବା 7 ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 0 ଆଡେ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମର H ପ୍ଲସ୍ ର concentration ବଢିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖେଇ ପାରିବା ସ୍କେଲରେ ଓଭରାଲି କେବଳ H ପ୍ଲସ୍ ର concentration କୁ ଯଦି 0 ମୋର 14 ଅଛି ଅଧିକରୁ ଏମିତି କମ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଧୀରେ 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 ବି କମି ହେଇଯିବ। କଣ H ପ୍ଲସ୍ ର concentration। ଏଟା ହେଲା ଏପଟେ H ପ୍ଲସ୍ ର concentration ଏମିତି କମିଲା। OH ମାଇନସ୍ ର concentration ତାର ଓଲଟାଟା ଏମିତି କମି କମି ଆସିବ। ମାନେ ଏଇଟା ବଢିବ ଏଟା ଏପଟକୁ ବଢିରୁ ଏଇଠୁ ଏଟା ଲେଫ୍ଟ ରୁ ରାଇଟ୍ କୁ ଗଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଯାଏ H ପ୍ଲସ୍ ର concentration କମି କମି ଯାଏ ଆଉ OH ର ମାଇନସ୍ ର concentration ବଢି ବଢି ଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତମକୁ କାଲି ଭୁଲ କହିଦେଇଥିଲି ତ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିଦେଲି। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ପଢିଥିଲେ pH ଆମର ଏଭରିଡେ ଲାଇଫରେ କେମିତି କଣ ୟୁଜ୍ ହଉଛି ତ ଆଜି ଆମେ ନେକ୍ସଟରୁ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି। Self defense by animals and plants through chemical warfare। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟ ଆମକୁ କାମୁଡେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗଛର କଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ବି ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ହୁଏ ଆମକୁ ପେନ୍ ହୁଏ ତ କଣ ପାଇଁ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବି ଷ୍ଟିଙ୍ଗ କରେ ନା ତାର ଡଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଏସିଡିକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମ ବଡିକୁ ଇରିଟେସନ କଜ କରେ। ତ ଆଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କାମୁଡୁଛି ଟାଟାରିକ ଏସିଡ ଥାଏ ନା ସେଥିରେ ଆଣ୍ଟ କାମୁଡିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେଟା ପେନ୍ ହୁଏ। ତ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ କରୁ ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ଡ ବେସ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ପେନ୍ ଟା ଆମର କଣ ହୁଏ କମିଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସରି ଆଣ୍ଟ ଡଙ୍କରେ ଟାଟାରିକ ଏସିଡ ନୁହଁ ଫର୍ମିକ ଏସିଡ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଫର୍ମିକ ଏସିଡ और ମିଥାନୋଇକ ଏସିଡ ଆଣ୍ଟର ଡଙ୍କ फॉर्मिक एसिड और मिथानोइक एसिड भूल କହିଦେଇଥିଲି। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହଉଛି ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟାକୁ ନେଟଲ। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ହର୍ବିସିୟସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯାହାର କି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟା ଥାଏ। ଏ କଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ବଡିରେ ଯଦି ବାଜିଯାଏ ନା ଆମକୁ ପେନ୍ ହୁଏ। ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ନାଟାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଖରେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥାଏ ଏଇଟା ହଉଛି ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ସେ ପାଖାପାଖି ହିଁ ଗ୍ରୋ କରିବ ଗ୍ରୋ ବିସାଇଡ୍ ଦ ନେଟଲ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଲିପ୍ ଟାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଆମକୁ କଣ୍ଟାଟା ଫୋଡି ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରବ୍ କରିବା କଲେ ଆମର ପେନ୍ ଟା ରିଲିଫ ହୁଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ କଣ ଜାଣେ ନା ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତ ଆମର ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ତାର ନେଚର କଣ ବେସିକ ନେଚର ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟା ଯେତେବେଳେ ରବ୍ କରୁ ତାର ଲିଫ୍ କୁ ଆମକୁ କଣ ହୁଏ ପେନ୍ ରିଲିଫ ହୁଏ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଏଟା ହଉଛି ନେଟଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହର୍ବିସିୟସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଟା ହଉଛି ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା।
तापर आसला नेचर ऑफ सोर्स और एसिड। अच्छा कोठी को एसिड रही देखा पे मैंने तुम तो एगुड़ाक आगुरी भी जाच भिनेगार कौन थाए एसिटिक एसिड मन रख भिनेगार थाए एसिटिक एसिड देन आसो आमर ऑरेंज रे थाए साइट्रिक एसिड लेमन रे भी साइट्रिक एसिड ऑरेंज आउ लेमन कौन गोटे फैमिली अच्छे तो मन रखिदेव ऑरेंज आउ लेमन ये दुटा आसो साइट्रिक एसिड मिल्क रे अच्छे कौन लैक्टिक एसिड कॉर्ड रे थाए लैक्टिस लैक्टोबासिलस नामक गोटे बैक्टीरिया जी कि मिल्क को कॉर्ड रे कन्वर्ट करे लैक्टिक एसिड अच्छी टमाटो रे ऑक्सालिक एसिड टैमरिंड टाटारिक ठीक अच्छे मन रख टमाटो ओ अच्छी ये ओ ऑक्सालिक एसिड ठीक है आ बाकी रहा ऑरेंज आउ लेमन दीटा साइट्रिक एसिड विनेगार एसिटिक एसिड आंट स्टिंग आउ नेटल स्टिंग ये दुटार कौन थाए मिथानोइक एसिड ठीक अच्छे टेबलटा मन रख एमसीक्यू इम्पोर्टेंट देन आसला फैमिली ऑफ सॉल्ट पिला माने एसिड आउ बेस विषय पढ़ीदे सॉल्ट रो फैमिली विषय पढ़ा पोटासियम सल्फेट सोडियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट कॉपर सल्फेट ये जो सल्फेट आसला देख भेराइटी ऑफ सल्फेट आसला मोटा को सिंबल लिखिदिए पोटासियम सल्फेट K2SO4 सोडियम सल्फेट Na2SO4 कैल्शियम सल्फेट CaSO4 मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 कपर सल्फेट CuSO4 ये सब सल्फेट पिला माने देखिबो सल्फेटटा कॉमन अछि तो मुझे कहि परिबि सल्फेट फैमिलीटा बोली ए सल्टटा होछि सल्फेट फैमिली रो सेमती सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड कपर क्लोराइड ये सब कोन क्लोराइड फैमिली रो आसिला आसला सोडियम कार्बोनेट सोडियम नाइट्रेट एमोनियम क्लोराइड ये सब होचंती भेराइटी ऑफ सॉल्ट जोटा कि आम प्रेजेंट अच्छा तो सब जार जदि मुझे केमिकल फॉर्मूला लिखी ऊपर लिखी दूची पोटासियम सल्फेट है K2SO4 सोडियम सल्फेट Na2SO4 कैल्शियम सल्फेट CaSO4 मैग्नीशियम MgSO4 कपर सल्फेट CuSO4 नस्ल सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम कार्बोनेट NaCO3 एमोनियम क्लोराइड एमोनियम क्लोराइड हम NH2Cl ठीक अच्छे ये सब आसला आमर सिंबल से तुम बुक रे दे दी सल्ट से सब जार सिंबल पचार ठीक अच्छे मुझे तुमको सिंबल गुड़ाक लिखिदेली सिंबल गुड़ाक लिखिदी एमोनियम क्लोराइड सिंबल हूँ NH4Cl NH2Cl है तो पिला माने अच्छा सॉल्ट जो फॉर्मेशन होची आम आगुरी जानले तार गोटे पॉजिटिव चार्ज अच्छे और नेगेटिव चार्ज अच्छे गोटे बेसिक रु आसथिबो आ गोटे एसिड रु आसथिबो जेमति कि NaCl कथा जदि देखिबा गोटे नेली सॉल्ट एसिड आ गोटे नेली सोडियम हाइड्रोक्साइड जे कि होची गोटे बेस ए दुईटा को कन्बाइन करबा जोगु H+Cl- Na+OH- तो A प्लस A माइनस को मिसिला A प्लस A माइनस को मिसिला तो मोर हो गला NaCl प्लस वाटर जोटा होची सॉल्ट तो आम देखिले जो आम सॉल्ट फॉर्मेशन होची तार गोटे पार्ट प्लस Na प्लस रोचे और Cl माइनस रोचे तो ये Na प्लस टा कौन आछी गोटे बेस रो आछी एटा गोटे एसिड रो आछी तो सेटा ही लिखा है सॉल्ट हैविंग सम पॉजिटिव और नेगेटिव radicals said to belong to a family एबे सोडियम सल्फेट पोटासियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट ए सब कौन सल्फेट SO4 2 माइनस एटा होची गोटे आनायन राडिकल नेगेटिव राडिकल जोठरो कि ए सल्फेट फैमिली रु ही आसीछि एबे देखिबा जति मु लिखिबी सोडियम क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट सोडियम सल्फेट तो एठी आमर Na प्लस टा कौन हो कॉमन ही होची माने
Na प्लस radical तो एटा सोडियम फैमिली रो आसी बोली भी हमें कहि परिबा फॉर एग्जांपल NaCl Na2SO4 बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट एइदर तार पॉजिटिव रेडिकल को नेकी तमे फैमिली रे इंक्लूड करि परिबो नहले तार नेगेटिव कैरेक्टर जो रेडिकल अछि ताको नेकी मध्ये गोटे फैमिली कर परिबो तो मु एटी लिखि परिबी K2SO4 MgSO4 belongs to which family? Sulfate family एटा कहा परे ना नेगेटिव रेडिकल ऊपर नहीं कि हला जदि पॉजिटिव रेडिकल कथा देखिबा सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट belongs to सोडियम फैमिली बुझि पारलो हला तापर देखिबा पिला माने pH ऑफ सॉल्ट आमे देखिले एसिड रे pH टा कोन थाए लेस देन 7 थाए फॉर एसिड आ जदि एसिड पे pH टा कोन थाए ना 7 रो लेस थाए जदि बेस देखिबा ताले मोर देन 7 थाए ताले जो 7 रेंज टा जो है हम आगुर कहिछि सेटा हो हमर न्यूट्रल तो सॉल्ट हमर कोन लिटमस पेपर न्यूट्रल बेले हम आगुर जानछे तार रेंज टा केते रहइबो 7 रहइबो on the other hand salt of a strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7 अच्छा पहला माने मु तुमको एठी ऑलरेडी कहिछि जे गोटे जो सॉल्ट फॉर्मेशन हुए ସେଥିରେ ଥିବା ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଆୟନ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ଏସିଡରୁ ଆସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେସ୍ରୁ ଆସେ ତାପରେ ଯାଇକି ତ ସଲ୍ଟ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ବନଉଛି ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ହେଇଛି ସଲ୍ଟ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ NaClଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ Na ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଯେଉଁ ସଲ୍ଟ ଆସିଲା ଆର pH ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା 7 ପଳେଇ ଆସିଲା କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏସିଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ବେସ୍ gives rise to salt ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେ ଏଠି ଏସିଡ୍ ନେବି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏସିଡ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ନେଇଯିବି ଆଉ ଯେଉଁ ମୋର ବେସ୍ ରହିଲା ବେସ୍ ନେଇଗଲେ ୱିକ୍ ବେସ୍ ମୋର ସଲ୍ଟ ତ ଫର୍ମେସନ୍ ହବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଏସିଡ୍ ଆଉ ବେସ୍ ନେଲେ ସଲ୍ଟ ହେଉଛି ବଟ୍ ମୋର ଯେହେତୁ ଏଠି ଏସିଡ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଇଏ ମୋର ଡୋମିନେଟିଂ ହେଇଗଲା ମୋର ଡୋମିନେଟିଂ ମିନ୍ସ ମୋର ସଲ୍ଟରେ ଏସିଡ୍ର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟା ଅଧିକ ଅଛି ଏସିଡ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସଲ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏସିଡିକ୍ ହବ କି ନାହିଁ pH ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 7 ହେଇଯିବ ସଲ୍ଟଟା ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଜାଣିଛେ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ରେ ନେଇଛି ତାହେଲେ ସିଏ ସ୍ଲାଇଟଲି ଏସିଡିକ୍ ହେଇଯିବ ତାର pH ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଯେଉଁ 7 ରହିବା କଥା 7 ନ ରହିକି 6ରୁ 7 ରେଞ୍ଜରେ ରହିପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି ଏସିଡ୍ଟା କ'ଣ ନେଇଯିବି ୱିକ୍ ଏସିଡ୍ ନେଇଯିବି ବେସ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ ନେଇଯିବି ଏଠି ମୋର ଯେଉଁ ସଲ୍ଟଟା ହବ ଏ ସଲ୍ଟଟା କ'ଣ ହବ ଏଠି ଡୋମିନେଟିଂ କିଏ ହେଲା ବେସ୍ ତ OH କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟା ବଢ଼ିଯିବ ସଲ୍ଟ ହେଇଗଲେ ବେସିକ୍ର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିଗଲା ବେସିକ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ସଲ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ବେସିକ୍ ହେଇଯିବ ଯେଉଁଟାକି ମୋର୍ ଦେନ୍ 7 ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ସେ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ତୁମ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ହଁ ପୋଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ମୁଁ ଉପରେ ଏହାର ସିମ୍ବଲ୍ ଲେଖୁଛି ପୋଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ସିମ୍ବଲ୍ କ'ଣ KNO3 ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ସିମ୍ବଲ୍ NO3 ପୋଟାସିୟମ୍ ହେଉଛି K ପୋଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେମିତି ବନା ହେଇଛି ଏସିଡ୍ ହେଇଛି HNO3 ଆଉ ବେସ୍ ହେଉଛି KOH ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ HNO3 ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ ତ ମୋର pH ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 7 ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ AlCl3 ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ୱିକ୍ ବେସ୍ ପିଲାମାନେ WB ମାନେ ୱିକ୍ ବେସ୍ SA ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ମନେ ରଖିବ S stands for strong
W stands for weak, A means acid, B means base. ତାକୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଲେଖୁଛୁ। ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ZnSO4, ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ H2SO4, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍, ZnOH2 ୱିକ୍ ବେସ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୋର pH ଟା ଦେଖିବ ସେଇ <7 ପଳେଇ ଆସିଲା। ଠିକ ଅଛି। କପର ସଲଫେଟ୍ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ୱିକ୍ ବେସ୍, ସେଥିପାଇଁ pH <7। ସୋଡିୟମ ଏସିଟେଟ୍ एसिटिक एसिड एटा हूँ गोटे कौन वीक एसिड, एसिटिक एसिड हूँ वीक एसिड। मुझे तुमको आगुरी कही स्ट्रंग एसिड वीक एसिड केमती जानिबा। स्ट्रंग एसिड माने जे कंप्लीटली डिसोसिएट होके H+ अधिक नंबर दउथबो, बट जे लेस डिसोसिएट हबो आ H+ लेस अमाउंट रे दबो सेटा हबो वीक एसिड। वीक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रंग बेस, ताले बेस टा कोन हिजिवो मोर देन 7 हिजिवो, 7 रो बड हिजिवो कि नै सोडियम एसिटेट। कपर सल्फेट एतिके, सोडियम एसिटेट CH3COONA। ठीक अच्छे। एटा केमती हैला पिला माने सोडियम एसिटेट देख मु नेली CH3COOH सहित NaOH, एटी CH3CO- H+ OH- Na+ देख AH+ AOH- वाटर हिजबो, CH3COONA सॉल्ट हे गला आ वाटर हे गला। ठीक अच्छे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, तो कार्बोनिक एसिड नेली। ठीक अच्छे। एटा हूँ गोटे वीक एसिड कार्बोनिक एसिड, एटा हूँ स्ट्रंग बेस। तो मोर pH रेंज टा मोर देन 7, 8.3 रो 8.4 पळे आछे। ए सेही कार्बोनिक एसिड वीक एसिड जोटा कि सोडियम कार्बोनेट हला Na2CO3, एटा स्ट्रंग बेस। तो मोर pH टा 11, 12 रहला। देखिलो तो आम एठू कौन जानले ना गोटे एसिड और बेस जदि से भितर जोटा स्ट्रंग थिबो सॉल्ट रो कैरेक्टर मध्य से अनुसार स्ट्रंग आउ वीक हिसाब रे ही रहिबो। बुझी पारला। नेक्स्ट केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अच्छा पिला माने ता पूर्व गोटे जिंस करबा, कौन अच्छा पिला माने एटा को टिके आउट थोड़े टिके मु बुझे रोज भलरा एक सेकंड। हम तो पढ़िले जे हमर जो सॉल्ट एसिड प्लस बेस मिसिले सॉल्ट होच। तो एबे सोडियम कार्बोनेट कथा देखिबा नहीं, सोडियम एसिटेट CH3COONA, एटा केमती फॉर्मेशन होला। मो एसिड नै जे एसिटिक एसिड CH3COOH, बेस नली NaOH। अच्छा CH3COOH निजो केमती ब्रेक करे, CH3COO- और H+ रे ब्रेक करे। सेमती सोडियम हाइड्रोक्साइड केमती ब्रेक करे Na+OH-। तो प्लस माइनस हवा मिसिबो CH3CO- सहित आउ एपटे मोर कौन Na+, तो प्लस माइनस कौन हम अट्राक्ट हम, तो मोर हो CH3COONA। एपटे OH+ OH- दब वाटर, जेहेतु एटा गोटे एसिड एटा गोटे बेस, तो मत वाटर सहित कौन मिल सॉल्ट। एति हूँ जिनस सॉल्ट केमती फॉर्मेशन है जान लो, जेहेतु एटा गोटे वीक एसिड एटा हूँ गोटे स्ट्रंग बेस, तो मोर सॉल्टा मत से हिसाब रे बेसिक हो गला। बहुत सिंपल जिनस एमती मन रख। ठीक अच्छे। नेक्स्ट पे देखा केमिकल्स फॉर्म कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जोटा कि होचे सोडियम क्लोराइड। सेटा होचे गोटे सॉल्ट जोटा कि हमें हमर डे टू डे लाइफ रे फूड हिसाब रे यूज करू। अच्छा जो सॉल्ट थाए हमर सी वाटर डिजोल्व होगी थाए, ताको बहुत गुड़े प्रथमे कौन करा जाए फिल्ट्रेशन करा जाए, ताको खरे रखी सुखा हुए, ये सब जिनस करके हमें सॉल्ट को पाई थाओ। बहुत गुड़ाए प्रोसीजर फॉलो करला पर हमें सॉल्ट को पाई थाओ। ठीक अच्छे। तो
डिपोजिशन ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, किसी किसी जगह आमर डिपोजिशन हो जाए सॉलिड सॉल्ट जोटा कि आम पाऊ। दिस लार्ज क्रिस्टाल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्यूरिटीज। अच्छा, से जो किसी किसी नदी तटरे कूलरे नदी तट ना समुद्र कूलरे आम देखा मिले आम सल्टा डिपोजिशन हो सहित इम्प्यूरिटी थी जो तार कलरटा कौन हो जाए ब्राउन हो जाए आम कौन कहू रक सल्ट। बुझिपाल। बेड्स ऑफ रक सल्ट जमी बेड्स ऑफ रक सल्ट माने रक सल्ट गोटे चादर वाला जमी थिबो पूरा फैलिकी थिबो फॉर्म व्हेन सीज ऑफ बेगन एज ड्राइड अप। जो जो आमर मार्जिनाल एरिया अच्छी सी रो कूल लगी 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 ड्राइड अप हो जाए तो सही आमर बेड ऑफ रक सल्ट हो जाए। तो आम केमती कोअल माइन जमती करा जाए रक सल्ट को सेमती माइन करिकी आमे बाहर करी थाऊ। पिलाने तुमको देखो बेड्स ऑफ रक सल्टा केमती थाए ए टाइप रो थाए पिला माने। एटा तो गोटे ठंडा एरिया वाला देखो एमती सल्ट गुड़ाक एमती थाए ए जगह जार ठीक अच्छे। आस कॉमन salt, a raw material for chemicals. Chemical salt thus obtained in an important raw material for various material daily use such as sodium hydroxide, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर ये सब। अच्छा, जो आम नॉर्मल सॉल्ट मिले ना आम ताकू नहीं बहुत किसी जिनस बन था आम डेली यूज जोड़ा करूँ डे टू डे लाइफ रे जो लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग सोडा कौन बेक कर फूड केक वगैरह तुम यूज कर वाशिंग सोडा कपड़ा धोबारे ब्लीचिंग पाउडर पानी को सफा रखिपारे ये सब यूज करो थाओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा पिला माने एबे कौन करा जहाँ जहाँ हमर डे टू डे लाइफ रे यूज करा ताको हमर लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग पाउडर ये सब केमिति कौन यूज होला। जितेबाला पिला माने गोटे काम करिवो इलेक्ट्रिसिटी पास करा जाए थ्रू एन aqueous solution of sodium chloride। पिलाने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन देकी जो इलेक्ट्रिसिटी पास करिवो आमे जानी जानिचे जे सोडियम क्लोराइड कौन डिसोसिएट हुए कैटायन आनायन रे ताले करंट तो फ्लो होबो सी प्रोसेसटा सेटा ब्राइन बोली कह जाए ठीक अच्छे। सी कौन हम ना डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है NaCl टा कौन वाटर सहित कौन कराई सल्यूशन कराब ना करके करंट फ्लो कले आम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड अच्छे ये HOH ना वाटर माने ये जो NaOH डिपोजिशन हो गला। आउ रहा कौन क्लोरीन आउ रहा हाइड्रोजेन ये क्लोरीन गैस एक बार हाइड्रोजेन गैस एक बार। तो पिला माने आम कहले ना सोडियम क्लोराइड को आम डे टू डे लाइफ रे बहुत किसी जिनस तैयारी करूँ जोटा कि आमर यूज हुए। तो सोडियम क्लोराइड रो आम कौन पाइले सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित क्लोरीन गैस आउ हाइड्रोजेन गैस सबूक ये जो बाय प्रोडक्ट आसी सबूक आमर इम्पोर्टाट। एटा को क्लोरो आल्काली प्रोसेस कम अच्छे गोटे आल्काली पाइले सहित गोटे क्लोरीन पाइले क्लोरीन गैस पाइले ठीक अच्छे। से क्लोरो आल्काली प्रोसेस बोली कह जाए क्लोरो फॉर क्लोरीन एंड alkali for sodium hydroxide. Chlorine gas is given off at the anode. Anode means what? Chlorine। अच्छा एटा तो सॉरी NaOH रा तो डिपोजिशन होगला आ क्लोरीन गैस टा कोपड़ बाहर Cl टा पॉजिटिव आड़े बाहर पॉजिटिव रे आ H प्लस H2 गैस बाहर मींस को बटे बाहर नेगेटिव बटे कैथोड बटे बाहर सेटा ही कहा ठीक अच्छे। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड आ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टा कैथोड कैथोड मींस नेगेटिव पाखरे दिस थ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर यूजफुल। तो पिला माने क्लोरीन गैस टा कोड बाहला एनोड एटा कैथोड एटा भी कैथोड पाखे पाखे बाहला बुझी पारलो। एटा तार प्रोसेस तुम बुक रे देछि इंपोर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द क्लोरो अल्काली प्रोसेस सोडियम आउ क्लोराइड भांगी गला। अच्छा पिला माने एटा होछ मोर नेगेटिव चार्ज एटा होछ पॉजिटिव चार्ज मु नेछि कोन सोडियम क्लोराइड Na प्लस Cl माइनस आउ नहीं वाटर जोटा कि H प्लस OH माइनस। तो मोर जी पॉजिटिव चार्ज गुड़ाक अच्छी Na प्लस H प्लस से को साइड रहा कैथोड आड़े अट्राक्ट हो आउ जो मोर नेगेटिव चार्ज अच्छी Cl माइनस OH माइनस ये सब कौन हम ना मोर पॉजिटिव एनोड आड़ को अट्राक्ट हो। तो एमती है कौन है ना ये जो नेगेटिव पॉजिटिव अट्राक्ट होके एपटे है ब्राइन कंटेनिंग NaOH एटा ब्राइन टा दिखाई तापर एठू कौन बाहला ना जो ब्राइन जोटा कि NaOH को कंटेन करछे
ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇପଟେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଗଲା, ଏ OHଟା ତ କ'ଣ ହେଲା NaOH ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ H ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏଇପଟେ ବାହାରିଲା। ଫ୍ୟୁଲ୍ ଏମୋନିयल ଫର୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ୟୁଲ୍ସରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ମାର୍ଜିନ୍ ଆମୋନିଆ ଫର୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ଏଥିରେ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଆଉ Cl2ଟା କେଉଁଥିରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ? ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ସ, ପଲିଭିନାଇଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବନେଇବାରେ, PVC, ଡିସଇନଫେକ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ୍ସରେ ୟୁଜ୍, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସରେ Cl2 ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ତ NaCl ବନେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, ଆଚ୍ଛା। କ୍ଲୋରିନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous सोडियम क्लोराइड, जोटा ब्राइनରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ତିଆରି କରିଦେଇଛେ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ମିଳିଲା ଯେଉଁ ବ୍ରାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବା ଆକ୍ୱା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲେ, ଯେଉଁ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଫର୍ ମେକିଂ ହ୍ୱାଟ୍ ନା ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର। କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ବନେଇ ପାରିବା। କେମିତି ନା ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଅଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ ପାସ୍ କରାଯିବ ଆମକୁ ମିଳିବ କ୍ୟାଲସିୟମ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ତାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି CaClO ହୋଲ୍ ଟ୍ୱାଇସ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଏ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡରର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? Ca କ୍ୟାଲସିୟମ କ୍ଲୋରିନ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ର ଆଉ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କରିକି ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସ୍ଲେକ୍ଟ ଲାଇମ୍ ବୋଇଲେ ଡ୍ରାଏ ସ୍ଲେକ୍ଟ ଲାଇମ୍, ଯେଉଁଟା କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ସେଠୁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ମିଳିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିଦେଉ ସିନା, ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ବୁଝିପାରିଲ? ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡରକୁ କଟନ୍ ଆଉ ଲାଇଲନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଡ୍ରେସ୍ ୱାଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡ୍ରିରେ, ଆଉ ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଜର୍ମସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଆମେ ପକାଉ। ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା। ପିଲାମାନେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜେନେରାଲି ଆମେ ପକେଇଥାଉ କେକ୍ ବଗେରାରେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ, ଫୁଲିବା ପାଇଁ, ଭଲ ସ୍ପଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ଆମ କେକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ରିସ୍ପି ପକୋଡ଼ା ହଉ କେକ୍ ବଗେରାରେ ଆମେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁ। ତ କେମିକାଲ ନେମ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। ବେକିଂ ସୋଡ଼ାର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। ଏଇଟା କେମିତି ହେଉଛି ବେକିଂ ସୋଡ଼ା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ହଁ, ମାନେ ବେକିଂ ପାଉଡର ଇଜ୍ ହିଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମିକ୍ସଡ୍ ଇନ୍ ୱାଟର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏରା ଯଦି ବେକିଂ ସୋଡ଼ାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଫ୍ଲପି କରାଏ, କ୍ରିସ୍ପି କରାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ହଁ କହୁଛି, ବେକିଂ ସୋଡ଼ାକୁ ଆମେ କେମିତି ତିଆରି କରୁ? ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଏଥିରୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ତିଆରି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ରେ ୱାଟର ଦେବା, ତା ସହିତ କ'ଣ କରାଯିବ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମୋନିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆମର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦେବ ସୋଡ଼ିୟମ ଏମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଗୋଟେ ବାହାରିବ NH4Cl, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ଠିକ୍ ଅଛି। এই ରିଆକ୍ସନଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସହିତ ୱାଟର, ତା ସହିତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଏମୋନିଆ ଦେଲେ ଯାଇକି ଆମର ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ବେକିଂ ସୋଡ଼ା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ଡ ନନ୍ କୋରେସିଭ୍ ବେସିକ୍ ସଲ୍ଟ। ବେସିକାଲି ବେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କୋରେସିଭ୍ ଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇଟା ନନ୍ କୋରେସିଭ୍। ଆଉ କୁକିଂ ବେଳେ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ବେକିଂ ସୋଡ଼ାଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଫ୍ଲପି ଆମକୁ ଦିଏ, କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା NaCO3 କୁ ଆମେ ହିଟ୍ କରୁ, ସେ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ମୋତେ କ'ଣ ଦିଏ? ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍, ତା ସହିତ ୱାଟର, ତା ସହିତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡରେ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଜିନିଷଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଆଉ ଦେନ୍ ଆସିଲା ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା। ବେକିଂ ସୋଡ଼ାର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ?
बेकिंग सोडाटा जेनराली मिक्सचर ऑफ सी कौन फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर अच्छा बेकिंग सोडा हूँ कौन बेकिंग सोडा है NaSO3 बुझिपार ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एटा हूँ मोर बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनवाई कौन करा जाए मिक्सचर हूँ बेकिंग सोडा जोटा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टारिक एसिड तो ये दुटा को मिसेले मत बेकिंग पाउडर मिल जो बेकिंग पाउडर को हिट करा जाए वाटर सहित से ये रिएक्शनटा हुए बोले से कहूचे देख बेकिंग पाउडरटा केमिति तैयारी मन रख ना बेकिंग सोडा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अच्छी ता सहित एडिबल माइल्ड अल्प टिके टार्टारिक एसिड मिसा हम मिसेले जाके मोर बेकिंग सोडा हुए आउ जो बेकिंग सोडा सहित H प्लस जो मु ऐड करे मिक्सड इन वाटर CO2 H2 और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉज ब्रेड केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट और स्पंजी कार्बन डाइऑक्साइड जो ही सॉफ्ट और स्पंजी हुए सोडियम हाइड्रोजन कार्बन इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड मीन्स कौन आम आगुरी जानचे जे एसिडिटी आम खाऊ कि नहीं एसिड रो प्रभावटा को कमेवाई जेहेतु अल्कालाइन न्यूट्रलाइज कर दिए रिलीफ दिए आउ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज हुए वाशिंग सोडा ना रही तुम जापार एटा कौन कराए सफा करने यूज कराए केमिकल हूँ केमिकल फर्मुला अच्छे Na2CO3 10H2O पे जो डट देखिए 10H2O लिखाई यार मिनिंग तुमको पछे कहबी कौन आर इम्पोर्टान्स कौन एमती कहीं लिखाई अच्छा ऑब्जर्व कर सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट मिलूँ ना बेकिंग सोडा को जिते मुझे हिटिंग कली NaSO3 को मत सोडियम कार्बोनेट मिलता कि नहीं हाँ तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वाशिंग सोडा Na2CO3 मत मिलला केतबेले NaSO3 को हिट कले तो ये जो Na2CO3 है आपको रिक्रिस्टलाइजेशन माने किसी गोटे तार पोजिशन चेंज होगी मत कौन मिल ये वाशिंग सोडा मिले इट इज ऑल्सो बेसिक सॉल्ट वाशिंग सोडा भी कौन हो गोटे बेसिक सॉल्ट आर रिएक्शनटा हूँ Na2CO3 sodium carbonate react with 10 molecules of water gives rise to Na2CO3 dot 10H2O. That was the chemical formula. Sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are useful for chemical in many industrial process as well. बहुत इंडस्ट्रियल प्रोसेस रे यूज हुए यूजेस कौन ग्लास सो पेपर इंडस्ट्री यूज करा जाए बोराक्स फॉर्मेशन यूज करा जाए क्लीनजिंग एजेंट डोमेस्टिक पर्पस परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर यूज करा जाए एटा खाली मोर मन रखिबार अछि किछ नै पढिबो 2 मार्क्स रे पढि पारे अच्छा पिला माने जो सॉल्ट गुडा अछि एबे जो 10H2O आर मीनिंग टा कोन देखिया पिला ने गोटे एक्सपेरिमेंट कराई कौन नियो गोटे टेस्ट ट्यूब कपर सल्फेट न पूरा ड्राए टेस्ट ट्यूब खाली बर्नर जलेब टिके समय पर देखिब वाटर ड्रपलेट लगे अच्छा मु तो ड्राए कपर सल्फेट नहीं क्रिस्टाल रो तो वाटर कोड आसला मीन्स ता भितर किछि गोटे वाटर प्रेजेंट अछि जो कपर सल्फेट क्रिस्टाल अच्छी जो ड्राए कंटेनर देखिले से वाटर ड्रपलेट लगी द वाटर इज रिमूव एंड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट जेतेबेले से वाटर टाको अच्छा कपर सल्फेट ब्लू कलर थाए तो जितेबाला मुझे ड्राए करदे से कौन हो वाटरटा रिमूव हो जाओ सल्टा व्हाइट कलर हो पुणी जो वाटर आड करदेली से एगेन कौन हम ना ब्लू कलर देखा जोटा कि क्रिस्टालटा रिअपियर हो गला दैट मीन्स मोर से जो क्रिस्टालटा अच्छी कपर सल्फेट क्रिस्टाल से भितर वाटर प्रेजेंट अच्छी मुझे जानिली वाटर of crystallization is the fixed number of water molecule present in one formula unit of salt ଏବେ ଦେଖ गोटे सल्ट रो 1 यूनिट माने कपर सल्फेट जदि नेली आर 1 यूनिट रे 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट था ताको कोन कहछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गोटे फिक्स नंबर रो वाटर मॉलिक्यूल जेमति कि 5H2O गोटे 1 यूनिट फॉर्मूला रे कपर सल्फेट थाए तो फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जेमति हेले रहिबो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कपर सल्फेट एटा होची फिक्स
ଆଉ ଗୋଟେ ए टाइप ର ଆଉ ଗୋଟେ सॉल्ट होची कैल्शियम सल्फेट जोथिरे कि फिक्स अमाउंट माने 1 यूनिट रे 2 नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रहइबो ठीक अछि। प्लास्टर ऑफ पेरिस जोटा कि जनरली जो तुम गोड़ हाथ भांगी गले डॉक्टर माने गोटे पट्टी करती व्हाइट कलर देखि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहउची। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିପ୍ସମକୁ 373 କେଲଭିନରେ ହିଟ୍ କରୁଛେ ସେ ୱାଟରକୁ ଲସ୍ କରେ ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହୁଏ। କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମାନେ CaSO4 ହାଫ୍ H2O ଆର ଫର୍ମୁଲା। हेमी मीन्स हाफ H2O वाटर लॉस करके एथरे फॉर्मेशन होला ताको कहा जाय प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो सब्सटेंस अछि डॉक्टर माने यूज करते हम जानिले। अच्छा केमती बोन रो पोजीशन को ठीक करिया पय गोटे व्हाइट पाउडर गोटे मिक्सिंग कराबो वाटर सहित आउ इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास बुझी पारलो। तापरे कौन करा जाए 1/2 ए वाटर मॉलिक्यूल इज सोन टू बी अटैच एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पिले माने आरो लिखि दउची जो प्लास्टर ऑफ पेरिस रो फार्मूला कोन कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट हाफ H2O ता सहित मु जेतले 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करली मते मल्ला कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O जोटा कि हमें देखिदेले कैल्शियम सल्फेट रो केमिकल फार्मूला 2H2O क्रिस्टलाइजेशन वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो पिला माने हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल सोन करा हेची वाटर क्रिस्टलाइजेशन रे हाउ कैन यू गेट हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल हमें अधा वाटर मॉलिक्यूल केमिति पाइबा तो आर रीजन है बिकॉज two formula units of CaSO4 share one molecules of water means गोटे मॉलिक्यूल वाटर जो अच्छे वन गोटे मॉलिक्यूल रो वाटर को दीटा टू फॉर्मूला यूनिट CaSO4 कौन करिवो ये गोटे CaSO4 गोटे अधा नबो आ गोटे CaSO4 आ गोटे अधा नबो सेति पे एम्ति हाफ मॉलिक्यूल्स रो वाटर प्रेजेंट रोचे। Two formula units of CaSO4 share one molecule of water सेति पे हम एम्ति हाफ हाफ करके पाउचे ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल्स डेकोरेशन एंड मेकिंग सरफेस स्मूथ अच्छे। तो टॉपिक एठी सरुची आ कुछ डाउट थिले जणेबो आर क्वेश्चन बहुत बड़ा चैप्टर तार क्वेश्चन भी बहुत शीघ्र करबा ठीक अछि। थैंक यू।